Hello students, welcome to my YouTube channel. In my previous video, I have discussed about the principles of plant disease management and then the physical methods to control the plant diseases. Okay, now today's video I'll discuss about the plant quarantine regulations. So start the video. Plant quarantine regulation. It is defined as a legal restriction on the movement of agriculture commodities for the purpose of exclusion, prevention or delaying the spread of the plant pest and diseases in an uninfected areas. मतलब ये एक लीगल रेस्ट्रिक्शन है जिससे कि डिजीज स्प्रेड ना हो from the uninfected area to infected areas. The term quarantine literally means a 40-day period. This one referred to the period of detention of ships arriving from countries where epidemic diseases occur. तो पहले जब ships उन countries से आते थे जहाँ पर वो epidemic disease है तो उनको पोर्ट पर ही रोक लिया जाता था 30-40 दिन के लिए और तब उसे हम क्वारंटीन कहते थे. Okay, the term quarantine is therefore to be regarded as the utilization of knowledge by a legally constituted authority to prevent the entry or spread of the injurious plant pest as a service in public interest. So, plant quarantine firstly started in France 1660, followed by Denmark 1903 and USA 1912. These rules were aimed at the rapid destruction or eradication of Barbary bush, which is an alternate host of Puccinia graminis tritici. जैसे आपने पक्सीनिया MSc प्रीवियस में भी पढ़ी है और यूजी क्लासेस के अंदर भी पढ़ी है, तो पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई क्या करती है? ब्लैक रस्ट स्टेम ऑफ वीट का जो ब्लैक रस्ट है वो इससे कॉज होता है और इसके दो होस्ट होते हैं, वीट जो कि इसका प्राइमरी होस्ट है और जो बर्बरी बुश है वो इसका ऑल्टरनेट होस्ट है. तो ये शुरू में बर्बरी बुश के इरेडिकेशन के लिए इसको रूल को शुरू में बनाया गया था. In India, plant quarantine rules and regulations were issued under Destructive Insects and Pests Act (DIPA) in 1914. In India, 16 plant quarantine stations are in operation by the Directorate of Plant Protection and Quarantine under the Ministry of Food and Agriculture, Government of India. Now, what are the objectives of it? The main objective of these laws is to prevent the introduction of insects, plant diseases and weeds from foreign countries. India is one of those such legislations are in operations. तो इंडिया के अंदर ये सारे legislative operations हैं जिससे कि जो insect जो diseased plant material हैं या insects या pests हैं वो from one country to another ना आ पाए और even within the country from one state to another state उनकी entry ना हो पाए. Then plant quarantine measures are of 3 types. पहला domestic quarantine, then foreign quarantine and then total embargoes, that is total restriction on import and export of agriculture commodities. So what is domestic quarantine? Rules and regulations issued prohibiting the movement of insects and diseases and their host from one state to another state in India is called domestic quarantine. That is within the India, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जब हम डिजीज्ड प्लांट डिजीज्ड मटेरियल हैं या कोई सीड्स हैं उनको क्वारंटीन या उनके ट्रांसपोर्ट को चेक करते हैं तो वो डोमेस्टिक क्वारंटीन कहलाता है. डोमेस्टिक क्वारंटीन इन इंडिया एग्जिस्ट फॉर 2 pests, rooted scale and Sanjos scale, and 3 diseases, that is bunchy top of banana, banana mosaic and wart of potato. तो जो तीन डिजीजेज हैं उन पर ही डोमेस्टिक क्वारंटीन एग्जिस्ट होता है इंडिया में. अब बंची टॉप ऑफ बनाना की क्या स्टोरी है? बंची टॉप ऑफ बनाना इज प्रेजेंट इन केरला, आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा. तो इन स्टेट्स के अंदर ये बंची टॉप डिजीज ऑफ बनाना होती है. ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ म्यूसा स्पीशीज एक्सक्लूडिंग द फ्रूट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम दिस स्टेट्स टू अदर स्टेट्स इन इंडिया. दैट्स वाई जो केरला, आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा से जो ट्रांसपोर्ट है बनाना का वो क्या है? कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है
अदर स्टेट्स में। तो ये डोमेस्टिक क्वारंटीन हो गया कि इन स्टेट से दूसरे स्टेट्स के अंदर जो बनाना है वो नहीं जाएगा, बिकॉज इन एरियाज़ के अंदर बंची टॉफो बनाना एग्जिस्ट करता है। देन बनाना मोज़ेक, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर ये डिजीज़ होती है। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एनी पार्ट ऑफ दिस म्यूसा स्पीशीज एक्सक्लूडिंग द फ्रूट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम दीज स्टेट्स टू अनदर स्टेट्स इन इंडिया। तो ये एक सेकेंड एग्जाम्पल है। Then wart of potato. It is endemic in Darjeeling area of West Bengal. Therefore, seed tubers are not be imported from West Bengal to other states. तो ये domestic quarantine के examples हैं. Then what is foreign quarantine? Rules and regulations issued prohibiting the import of plants, plant material, insects and fungi into India from foreign countries by air, sea and land. दैट मीन्स बाहर की कंट्री से किसी भी तरह से, ना तो वो जो भी डिजीज्ड मटेरियल्स हैं या इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो किसी भी तरह से ना तो एयर से, ना सी से या लैंड से उनको इंपोर्ट किया जा सकता है। फॉरेन क्वारंटीन रूल्स मे बी जनरल और स्पेसिफिक। General rules aimed at prevention of introduction of pests and diseases into the country, whereas the specific rules aimed at 41 specific diseases and insects and pests. तो ये जो फॉरेन क्वारंटीन भी क्या होंगे? जनरल हो सकते हैं या स्पेसिफिक हो सकते हैं टू पर्टिकुलर डिजीज और पर्टिकुलर इंसेक्ट और पेस्ट्स। द प्लांट मटीरियल्स आर टू बी इम्पोर्टेड ओनली थ्रू द प्रेस्क्राइब पोर्ट्स ऑफ एंट्री। तो जो प्रेस्क्राइब पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर, जो हम अभी लेटर स्लाइड्स के डिस्कस करेंगे, सिर्फ वहाँ से ही प्लांट मटीरियल्स को हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। The plant materials are to be imported only through the prescribed ports of the country. तो उसमें कुछ एयरपोर्ट्स हैं, ये बाद में मैंने डिटेल में भी इसके बारे में लिख रखा है। सी पोर्ट्स हैं और लैंड फ्रंटियर्स हैं, जहाँ से कि हम सिर्फ उन्हीं जगहों से हम प्लांट मटेरियल को इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी कुछ डिजीजेस हैं जो कि फॉरेन कंट्री से हमारे इंडिया के अंदर आई। सपोज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो 1883 के अंदर इंट्रोड्यूस टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। देन कॉफ़ी रस्ट 1879 में इंडिया में आई श्रीलंका से। डाउनी मिल्ड्यूज ऑफ ग्रेप यूरोप से आई। देन फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट ऑस्ट्रेलिया। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस फिलीपींस। राइस ब्लास्ट कहाँ से आया? साउथ ईस्ट एशिया से आया। देन बंची टॉफ ऑफ बनाना इंडिया में श्रीलंका से आया। और फिर गोल्डन सिस्ट निमेटोड ऑफ पोटैटो, ये भी यूरोप से आया। तो ये कुछ फॉरेन कंट्रीज़ हैं जहाँ से कि डिजीज़ेस चल के इंडिया के अंदर आई, क्योंकि जो भी मतलब मिस्टेक रह गई है प्लान जो क्वारंटीन हम उनको नहीं कर पाए। इसके अलावा कुछ और ये लिस्ट है डिजीज़ेस की, यू कैन गो थ्रू दिस लिस्ट, जिससे कि ये फॉरेन कंट्री से इंडिया के अंदर आई। तो ये क्वेश्चंस कई बार आ जाता है कि कौन कौन सी डिजीज़ेस कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई इंडिया के अंदर। देन कॉफ़ी रेस्ट which come into India in 1819 from Sri Lanka is now widespread in coffee growing areas. अब उनके क्या रिपरकशंस हुए, क्या उनके इफ़ेक्ट हुए? जो कॉफ़ी 1819 के अंदर श्रीलंका से आई थी इंडिया के अंदर, कॉफ़ी रस्ट डिजीज़, अब वो कहें जो भी अपने इंडिया के कॉफ़ी ग्रोइंग एरियाज़ है वहाँ पर ये क्या है? वाइड स्प्रेड हो गई है। फायर ब्लाइट ऑफ पियर and other poems which have introduced from England in 1940 is well established in उत्तर प्रदेश। तो ये डिजीज शुरू में कहाँ आई? फायर ब्लाइट ऑफ पियर इंग्लैंड से आई और अब ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एस्टेब्लिश हो गई। देन लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो it is introduced into India in 1883 from Europe, is now present in many parts of the country. Then flag smut of wheat introduced from Australia is now well spread in MP, Punjab, Rajasthan and UP. Then rubber powdery mildew, which was introduced from Malaysia in 1938, is also causing great concern in Kerala. Then black rot of crucifers, believed to have been introduced to India with seeds imported from Holland and become established in India seed stocks, especially in West Bengal. तो ये हिस्ट्री है कि इस हिस्ट्री से फिर हमें ज़रूरत महसूस हुई ये रेगुलेशंस बनाने के लिए कि जब भी कोई फॉरेन कंट्री से हम प्लांट मटेरियल लेके आते हैं तो उसको हम किस तरह से चेक करें या किस तरह से उसे क्वारंटीन करें या कौन सा उसको सर्टिफिकेशन दे जिससे कि वो सेफ़ हो
इंडिया के अंदर इंपोर्ट करने के लिए। इन इंडिया more important plant diseases introductions are like the bunchy top virus of banana introduced from Sri Lanka in 1940, which has since spread widely in Kerala, Odisha, West Bengal and Assam. Then wart disease of potato was first noticed in Darjeeling district of West Bengal, having been introduced with seed potatoes from Holland. The golden nematodes attacking potatoes was recorded in Nilgiri Hills and spread in Tamil Nadu. The mosaic disease of banana is another introduced disease which is only confined to Gujarat and Maharashtra. तो ये सारी डिजीजेज है जो कि फॉरेन कंट्रीज से हैं और किस तरह से इंडिया के अंदर आके ये सेट मतलब इस्टेब्लिश हो गई और किन पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर ये परमानेंटली सेट हो गई कि मतलब अब वो डिजीज़ेस उनमें प्रेजेंट रहती ही रहती हैं। Then agencies involved in plant quarantine. The authority to implement the quarantine rules and regulations formed under DIP Act rests basically with the Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage under the Ministry of Agriculture. This organization handles bulk import and export of seeds and planting material for commercial purposes. तो ये एजेंसी है जिसके थ्रू ये अब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। Under this organization, 9 seaports, 10 airports and 7 land frontiers are functioning. तो जो भी ये सी पोर्ट्स और लैंड पोर्ट्स हैं ये एजेंसी के अंडर इस एजेंसी के अंडर में ही आते हैं और वहीं से ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है। These are the recognized ports for entries for import of plants and plant material. और ये कौन कौन से हैं? सी पोर्ट्स कौन से हैं? भावनगर गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, कोचीन चेन्नई, कोलकाता, देन तमिलनाडु, रामेश्वरम का तमिलनाडु, टुटिकोरिन, विशाखापट्टनम। इस तरह से कुछ एयरपोर्ट्स हैं। आप गो थ्रू दिस लिस्ट ऑफ एयरपोर्ट्स एंड दिस लैंड फ्रंटियर्स। तो ये ही जगह हैं जहाँ से कि एजेंसीज के थ्रू प्लांट्स को इंपोर्ट किया जा सकता है। The Government of India has also approved 3 other national institutes to act as official quarantine agencies, especially for research material, such as National Bureau of Plant Genetic Resources, Forest Research Institute, Dehradun for forestry plants and Botanical Survey of India for other plants. तो ये कुछ और एजेंसीज भी हैं जिनके थ्रू भी जो प्लांट्स को इंपोर्ट किया जा सकता है। देन मोडस ऑपरेंडी ऑफ क्वारंटीन फॉर हेल्दी प्लांट मटेरियल्स। तो ये द प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर इशूज सर्टिफिकेट्स एंड इंपोर्ट परमिट्स। ओके, तो ये जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो हमने पहले डिस्कस किया है कि द एनफोर्समेंट ऑफ प्लांट क्वारंटीन रेगुलेशंस इज कैरीड आउट बाय द टेक्निकल ऑफिसर्स इन द डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन एंड क्वारंटीन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनके सबके सुपरविज़न के अंदर क्या होता है, ये एक एडवाइजर सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन, जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू होता है। द सर्टिफिकेशन मस्ट कंटेन दैट लिविंग प्लांट्स or their parts they were thoroughly examined on a date which must be not more than 14 days prior to shipment and were found to be disease free. तो जब भी शिपमेंट होएगा तो जो भी सर्टिफिकेशन है डिजीज़ फ्री के या उनके इंस्पेक्शन के या सर्टिफिकेशन के वो 14 दिन से पुराने नहीं होने चाहिए। ओके, तो जो मोडस ऑपरेंडी ऑफ क्वारंटीन इज द इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन एट द सोर्स ऑफ एक्सपोर्ट एट द रिसीविंग एंड। प्लांट मटेरियल्स आर डिटेन टू टेस्ट फॉर लेटेंट इन्फेक्शंस। तो ये जो भी इन्फेक्शंस हैं उनके लिए प्लांट मटेरियल्स को डिटेन किया जाता है, उन पे टेस्ट किया जाता है। Quarantine operations may restrict trade and restrictions to trade should be done when it is necessary and for that it is necessary to confirm that the pathogen will be introduced if not regulated. If introduced, the pathogen will prove to be harmful and that there are no natural methods of introduction to the pathogen. तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो टेस्ट किए जाते हैं कि जो पैथोजन है will be introduced if not regulated। तो कि मतलब क्या जो पैथोजन है
वो इट इज़ नॉट रेगुलेटेड एंड यदि उसको इंट्रोड्यूस ही नहीं है, मतलब पैथोजन इज़ नॉट प्रेजेंट, पर यदि पैथोजन प्रेजेंट भी है तो ये हार्मफुल नहीं होगा, या फिर उसके स्प्रेड के कोई मेथड्स नहीं होंगे। दस फॉर अ पैथोजन which cannot be carried through the plant material or will not be harmful in the climatic conditions of the receiving country or can come through wind, there is no justification for restricting the trade by the quarantine regulations। तो ये सारे फैक्ट्स को चेक किया जाता है कि पैथोजन है या नहीं है, और है तो वो हार्मफुल है या नहीं, और यदि पैथोजन उस जो भी रिसीविंग एंड है या जिस भी कंट्री में जा रहा है उसकी कंडीशंस के अंदर वो कितना हार्मफुल है या वो कितना स्प्रेड हो सकता है, तभी जो है उस चीज़ का सर्टिफिकेट मिलता है for the export। Then seed certification, many diseases of crops are introduced only through the seeds or other propagating materials such as cuttings, grafts, bulbs, tubers, etc. Such diseases can easily be controlled by proper selection of disease free propagating materials। मतलब जितनी भी क्रॉप्स हैं वो या तो सीड्स के थ्रू प्रोपोगेट होती हैं, या कटिंग्स हैं, ग्राफ्ट्स हैं, बल्ब्स, ट्यूबर्स, इनके द्वारा, और इनको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं यदि हम डिजीज फ्री प्रोपोगेटिंग मटेरियल को यूज़ करें। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज कंट्रोल डिवाइस इज एट प्रेजेंट बीइंग पेड ग्रेटर अटेंशन by employing certain new methodologies। One of such method is called seed certification or seed registration of seeds or other propagating materials to be free of pathogen inoculum। मतलब वो सीड्स जो कि पैथोजन इनोक्यूलम से फ्री हैं उनको हम क्या कहते हैं, सीड सर्टिफाइड, सीड सर्टिफिकेशन या सर्टिफाइड सीड्स कहते हैं। Certification is a voluntary program subject to regulation by national, regional or provincial agencies। The growers of seed or propagating materials who desire their stock to be certified contact the regulatory agencies whose plant pathologists inspect the fields and orchards and certify them or refuses depending upon the disease incidence therein। तो जो भी ग्रोअर्स हैं वो लोकल एजेंसीज या जो भी प्रेस्क्राइब्ड एजेंसीज हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो देखकर ये बताते हैं, मतलब टेस्ट करके, कि जो उनके सीड्स हैं या प्रोपेगेटिंग मटीरियल्स हैं वो डिजीज़ फ्री हैं या नहीं, और यदि वो डिजीज़ फ्री हैं तो वो उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं जिससे कि वो आसानी से उसको आगे फर्दर उसकी ट्रेडिंग कर सकें या उसको बेच सकें। Inspection and certification programs have achieved a considerable degree of success in controlling viral diseases of potatoes, sugarcane, citrus and banana, viral bacterial and fungal disease of beans and nematodes induced diseases of fruit crops। और ये सीड सर्टिफिकेशन की जो टेक्निक है या प्रोसेस है रादर, मतलब जिससे कि ग्रोअर जो प्लांट ग्रोअर्स है वो खुद कांटेक्ट करते हैं एजेंसीज को, इससे इस डिजीज़ स्प्रेड को रोकने में या उसको चेक करने में बहुत मदद मिली और बहुत सारी डिजीज़ेज से कंट्रोल में आ गई हैं। Then plant disease notification. It is such a regulatory measure in which the grower informs the authority concerned about the occurrence of a disease of potential danger, the pathogen of which might penetrate and spread in the area in near future। इसमें भी जो growers हैं वो कंसर्निंग ऑथोरिटीज़ को कांटेक्ट करते हैं कि जो प्लांट डिजीज़ है वो अकर हो रही है और उसका कितना पोटेंशियल है, कितना डेंजर है या कितना वो वाइडली स्प्रेड हो सकती है। तो जो एजेंसीज के लोग हैं वो आके चेक करते हैं उनको। द अथॉरिटी देन नोटिफाइज other growers to take necessary precautions against the disease। In this connection therefore the growers requires to be educated time to time। जिससे कि जब एक जगह का पता चल जाता है कि ये डिजीज़ यहाँ पे हो रही हैं तो बाकी के जो आसपास के ग्रोअर्स हैं तो जो अथॉरिटीज़ हैं वो उनको अलार्म मतलब उनको सावधान कर देती हैं जिससे कि डिजीज़ पूरी जगह पर ना फैले। और जो कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं वो फार्मर्स को और ग्रोअर्स को टाइम टू टाइम उनको एजुकेट भी करती हैं, उनको बताती रहती हैं डिजीज़ेस के बारे में।
Then prevention of sale of diseased plants. Prevention of sale of diseased plants refers to the principles of pathogen exclusion in which the authorities have legislative power to ban the sale of any diseased plant or planting material to prevent spread or multiplication of a pathogen in an area hitherto free from the disease. मतलब ये जो इलीगल एक्शन ले सकती हैं अथॉरिटीज़ और बैन लगा सकती हैं एज ए सीड्स पे या प्लांटिंग मटेरियल्स पे जो कि डिजीज्ड हों और जिनको ग्रो करने से डिजीज़ फैलने की पूरा चांसेस हों. देन फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, ये क्या होता है? इट इज़ एन ऑफिशियल सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंट्री ऑफ ओरिजिन विच शुड अकम्पनी द कंसाइनमेंट विदाउट विच द मटेरियल में बी रिफ्यूज फ्रॉम एंट्री. तो फॉरेन जब हम उसकी बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए, दूसरी कंट्री में एंट्री के लिए ये फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि जो भी मटेरियल हैं वो हैं सेफ़ हैं, डिजीज़ फ्री हैं और उस सर्टिफिकेट के द्वारा उनको आराम से कंट्री के अंदर एंट्री मिल जाती है. सो थैंक यू सो मच.